Yes. Rate law. dN by dt minus dN by dt is proportional to n. What is it n there? It can be mass, moles, atoms, anything. N is mass, moles, number of atoms, can be anything. And radioactive disintegration follows first order kinetics. What is first order kinetics? डबल हुआ तो डबल होना, ये 2 टाइम्स हुआ तो वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा. कौन सा मास अगर डबल लिया तो रेट भी डबल हो जाएगा. 1 मोल लिया तो रेट 10 होगा, 2 मोल्स लिया तो रेट 20 होगा. डबल डबल. देखो, इनकम 1000 रुपये, एक्सपेंडिचर पर डे एक आदमी 20 रुपये खर्च कर रहा. अगले साल इनकम डबल हो गया 2000 रुपीज. कितना खर्च करेगा? हाँ, कोई गारंटी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कुछ लोग रहेंगे डबल हो कुछ भी हो 20 रुपया बस. मैं सैकड़ों सालों से सेम खर्च कर रहा हूं इन्फ्लेशन के हिसाब से. बस वही न्यूज़पेपर आज 5 रुपया है, 20 साल पहले 50 पैसा होगा. वही सुपारी, सेम चीज एवरी डे. ठीक है ना? सो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बढ़ गया तो बढ़ गया, बस बात अलग है. सो कुछ लोग 2000 हो तो 20 करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे 40 रुपये खर्च करेंगे. दे आर फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. हाँ, फर्स्ट ऑर्डर. ये डबल हुआ तो डबल, डबल हुआ फिर भी सेम. दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. 0, दिस इज 1. कुछ लोग 80 खर्च करेंगे, सेकंड ऑर्डर. इनकम डबल हुआ, खर्चा 4 गुण बढ़ा दिया. कुछ लोग 160 खर्च कर देंगे. अरे 160 खर्च किया तो कितने गुण बढ़ाए? 8 गुण. थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स. 2000 काफी नहीं है ना? 160 खर्च किया तो 4800 हो गए. वो बताएंगे अरे अभी तो डबल हो गया, उधार ले लूंगा, अगले साल 4000 होगा, 8000 होगा. बदलता रहेगा ना, तब उधार चुकाऊंगा. कल का इनकम आज स्पेंड करना. अमेरिकन इकोनॉमी. नाउ सो minus dN by dt is proportional to n. Radioactive disintegration follows. Radioactive disintegration follows first order kinetics. देखो, how to express A and B. I don't know whether they are directly related or inversely related, or whether they are related or not. How to express that mathematically? A is proportional to B power m, where m belongs to R. m अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली रिलेशन, m अगर नेगेटिव है तो इनवर्स रिलेशन, m अगर 0 है तो नो रिलेशन. है ना? Therefore, rate is proportional to concentration to the power order. इसीलिए ये देखो, number of times change in, increase in, number of times of increase in concentration, number of times of increase in
रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, ये देखो 2 4 कितना, देखो क्वेश्चन बताओ, कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज बाय 2 times, रेट इज इंक्रीज बाय 4 times, ऑर्डर कितना 2, 327, ये 3 times बढ़ा है 27, थर्ड ऑर्डर, 711, क्या करना है, हाँ 11 को 7 की पावर में लेना है, 11 इज इक्वल टू 7 पावर m, रेट 11 is equal to 7 power m, so log 11 to the base 7. PQ, Q is equal to P power m and m is order, log Q is equal to m log P and m is equal to log Q upon log P, which is equal to log Q to the base P, log rate to the base concentration. That is the final statement, log rate to the base. Now concentration, rate 10 11 12 13, बस ऑर्डर कितना, ये टाइम्स नहीं, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये रेट, और ऑर्डर इज इक्वल टू, जब कॉन्सेंट्रेशन 10 था रेट 11 था, जब कॉन्सेंट्रेशन 12 हो गया रेट 13 हो गया, log 13 by 11, that is the number of times of rate to the base 12 by 10, 13 by 11 to the base 12 by 10. This was my statement, to my credit, this was given in AIMS 2003. AIMS, concentration is increased by P times, this is increased by Q times, what is the order? AIMS का क्वेश्चन बहुत तगड़ा रहता है, कभी कभी उसका आधा IIT में आता है, उसमें अगर 4-5 स्टेप रहा तो IIT में 1-2 स्टेप्स ही रहता है. Now minus dN by dt is equal to, minus dN by dt is equal to lambda n, where lambda is called disintegration law, disintegration rate law. This is decay constant or disintegration constant. Now why is this taken as a negative? Because concentration is decreasing. Now minus dN by dt is equal to lambda n, lambda निकालो, minus dN is equal to integral minus dN dN by n is equal to lambda dt. क्या होगा, हाँ minus dN by n, हाँ कितना, log log माइनस आएगा ना, माइनस log n टू द बेस ही, यल एन नहीं लिखूंगा, क्या ये क्या है, log n माइनस log n इज इक्वल टू 1 by n इज इक्वल टू lambda t plus c. Define c in a variety manner. C is equal to minus lambda n when t is equal to 0. C is equal to minus log n to the base e when t is equal to 0. Time t0 हुआ तो कितना खर्च होता है, कुछ नहीं. अभी ATM से ड्रा किया, कितना खर्च किया बोले तो, मैंने ATM से 10,000 निकाला, मैसेज मेरा घर में जाता है, अरे मैसेज सुन गया कितना खर्च किया, अरे अभी तो ड्रा किया हूं, t is equal to 0. हाँ, therefore minus log n to the base e is equal to, log n to the base e is equal to, बोलो
lambda t plus log sorry, I think I am making a mistake. log a minus x लेना है ना, माइनस देखो माइनस dx by dt is equal to dx dc by dt, n हटा दो, माइनस dx by dt is equal to k into a minus x, k into फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पावर 1. अगर यदि सेकंड ऑर्डर रहा तो a माइनस एक्स स्क्वायर लिखते, बस इतना ही. nth ऑर्डर a माइनस एक्स पावर n, तो इंटीग्रल माइनस dx by a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt इज इक्वल टू माइनस लॉग a माइनस एक्स टू द बेस e. व्हाई शुड वी टेक a माइनस एक्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कितना खर्च करूंगा डिपेंड्स ऑन कितना आज मेरे पास है. इट डजंट डिपेंड ऑन हाउ मच माई ग्रैंडफादर हैड 100 years ago. मेरा ग्रैंडफादर के पास 100 crore है. आज मैं कितना खर्च करूंगा डिपेंड्स ऑन आज मेरे पास कितना है, हाउ मच आई हैव टुडे. तो a माइनस एक्स जो बचा हुआ kt प्लस c एंड c इज इक्वल टू माइनस लॉग a to the base e when t is equal to 0. अभी करो. माइनस लॉग a minus x to the base e is equal to kt plus kt minus log a to the base e. kt is equal to log a by a minus x to the base e. ये इधर आए तो प्लस बनेगा, एंड k is equal to 2.303 by t log a by a minus x. यह बेस कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 है. मुझे वो ln लिखना पसंद नहीं है, नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम ही पसंद है. 2.303 k. Therefore, lambda is equal to 2.303 by t log a by a minus x. What is a? मैं ऐसा भी नहीं लिखूंगा. Initial by remaining. Initial by, this is my final form. Lambda is equal to 2.303 by t log initial by remaining. रिमेनिंग कितना खर्च हुआ उससे कोई मतलब नहीं, कितना है उससे मतलब है. व्हाट इज दिस टाइम t? ये a माइनस एक्स होने का टाइम है. नाउ लेट मी डिफाइन tx, टाइम टेकन फॉर x% completion, x% of the decay to get completed, x% to get completed of the mass. Now lambda is equal to 2.303 by t75 log 400 by x. x कितना? t75 बोले तो 75% खत्म, x% कंप्लीट. 75 खत्म, 400 में 75, 300 खत्म, 100 रह गए. x इज इक्वल टू 100. लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 by tx log 800 by 400. x is equal to 800 में से 400 रह गया, 400 खर्च हो गया, आधा 50%. x is equal to 50, t50, बिकॉज मैंने डिफाइन किया ना. ऐसा डिफाइन करते कि दिया हुआ क्वेश्चन 2011 में आया. दे हैव डिफाइंड.
Time taken for 1/8 is T 1/8. 1/10 is T 1/10. So T 1/8 by T 1/10 कितना करके पूछो। एक फ्रैक्शन आ रहा तो उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करा के उसको इंटीजर बनाए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एडवांटेज क्या है? इफ यू यूज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर स्पेंडिंग, तुम्हारा पैसा कभी खत्म नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। जब ज्यादा है ज्यादा खर्च करेगा, उसका थोड़ा पार्ट देखो। मैंने एक एटीएम के जमाने से पहले, बहुत पहले एक जगह गया था, 1000 पॉकेट में रखे 35 साल पहले। 1000 फर्स्ट डे मेरे पास कितना है? 1000 एक्सपेंडिचर 500। सेकंड डे मेरे पास कितना होगा? 500 होगा, और मैं कितना खर्च करूंगा? 250 खर्च करूंगा। थर्ड डे मेरे पास 250 है, 125 खर्च किया। कोई मुझे देखा तो क्या बोलेगा? सर आप रोज रोज कम खर्च कर रहे हो। मैं क्या बोलूंगा? नो, आई एम स्पेंडिंग द सेम। व्हाट्स दैट आई एम डूइंग? स्पेंडिंग हाफ ऑफ व्हाट आई हैव। 50%। फर्स्ट डे कितना खर्च किया? 50%। सेकंड डे 50% ऑफ द रिमेनिंग। देखो डिस्काउंट 50% प्लस 50% करके रखा, तो उसका मतलब क्या है? फ्री में देगा। यहां स्टार कंडीशन सप्लाई, ठीक है ना? 50% प्लस 50% ऑफ द रिमेनिंग मीन्स 25। सो 50% प्लस 25%, कोई मिला के 75, ठीक है ना? 2000 इसके ऊपर लिखा है। बाकी में शर्ट का कास्ट 400 है, सेल बोर्ड लगा है, 50% प्लस 50% बोर्ड। इसका खरीद 400 भी है। मैंने 50% प्लस 50% डिस्काउंट में खरीदा। उन्होंने 2000 मार्क किए उसके ऊपर, 1000 500 सेल में, जो 400 है उसको 500 में खरीदा। डिस्काउंट सेल बोले तो वही प्राइस ज्यादा लेने वाला। नाउ यस, सो half life period T half, T50, time taken for 50% of the reaction to complete. 50% completion का टाइम। आधा सिलेबस मैं 3 महीने में कर दूंगा। हाफ द सिलेबस 3 मंथ्स। टोटल सिलेबस कब होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 महीना हो गया, आधा सिलेबस हो गया। और 3 महीने के बाद आया, सर कितना हो गया? आधा हो गया, जो है उसका आधा। अभी देखूंगा कितना सिलेबस है। हाँ ठीक है, 3 महीने के बाद। So such a syllabus will never get completed. Now, so K is equal to 2.303 by T half log initial 1 है, रिमेनिंग कितना? हाफ, क्योंकि हाफ खर्च हो गया ना, 50% खर्च हो गया। 100 में से 50 गए, तो कितना हो गया? T half is equal to 2.303 by K into log 2. What is it? Log 2 0.3010. 2.303 into
0.3010 by k. Therefore T half is equal to 0.693 by k. IIT का नंबर्स कभी भी 1.396 693 का डबल in 20 days zero order kinetics 1.396 using zero order kinetics 20 days में कितना होगा? knock tip. Remaining is equal to remaining initial into 1/2 power n. Remaining a naught into 1/2 power n. ये क्या है? रिमेनिंग ए नॉट. देखो, कोई एक टाइम होता था बैंक में पैसा डाला तो 5 years में डबल होता था. ट्वाइस, 2 times 5 years में. व्हाट इज दैट कॉल्ड? डबल लाइफ पीरियड. डबल लाइफ पीरियड. अभी क्या होगा? अभी 100 रुपये डालो, 5 साल के बाद जाओ, क्या करेंगे? हैं? कितना देंगे? जेल में डालेंगे. क्योंकि 5 साल के बाद गया तो साल में 750 उसका अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस रहते, फीस रहता है. फर्स्ट ईयर 100 ले लेगा, 750 को 650 कर देगा, उसके बाद 750 3650 देना है, कहा है दे दो करके तुमको अरेस्ट कर देंगे. तो 5 years में डबल होने वाला स्कीम में मैंने 100 रुपया डाला 30 साल पहले. अब भी कितना होगा? हर 5 साल में डबल. 100 पहले इंटू 2 होगा, इंटू 2 5 years, इंटू 2 10 years, इंटू 2 15, इंटू 2 20, इंटू 2 25. सो 30 years में कितने 5 हैं? 6. सो 100 इंटू 2 power 6 6400 कुछ तो है. नाउ सो ये नॉट इंटू, यहां क्या है? उसको उल्टा हाफ लाइफ. 5 साल में आधा, 5 साल में आधा करके देंगे. सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू n. n इज इक्वल टू टोटल टाइम बाई t हाफ. ये सब फिजिक्स में के होंगे ना, नहीं काइनेटिक्स में. काइनेटिक्स टोटल टाइम बाई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ spells. Number of spells in which the mass is halved. कितने बार आधा कर गए? टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ पीरियड. टेबुलर फॉर्म. इनिशियल, रिमेनिंग, टी हाफ, लगे तो n. इनिशियल 3200, टोटल टाइम 40, टी हाफ 10, रिमेनिंग कितना? 32 क्या होगा? 4 बार आधा होगा, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 power 4 16. So n is equal to 4. This one 3200 into 1/2 power 4. बस डोंट सिंपलीफाई. 3200 10 साल में आधा होगा, नेक्स्ट 10 में आधा आधा आधा. लाइक द टेबल फॉर्म में कर दो. 1600 400 टोटल टाइम 100. हाफ लाइफ कितना? 1/4 हो गया, मतलब 2 हाफ लाइफ 2. n इज इक्वल टू. सो 50 साल. 1600 400 1/2 1/2 2 times आधा हो गया.
ऐसा टैबुलर फॉर्म में जितना भी क्वेश्चन कर सकते हो। टोटल टाइम T, Tx, time taken for x percent. Now A is equal to, remaining is equal to A naught into expression निकालो। T by Tx bar, total time T, Tx x percent completion, time for x, T by Tx times क्या होगा? T by Tx times कितना खर्च होगा, कितना रहेगा? x परसेंट खर्च होगा, 100 minus x रहेगा। What is the fraction? 100 minus x by 100, 100 minus x upon 100 whole power T by Tx। सोच को K is equal to 2.303 by Tx log, initial 100 रहा तो 100 minus x, 100 into initial 100 is equal to 2.303 by T log 100 by क्या होगा? थोड़ा टाइम T में कितने बार होगा वो थोड़ा सोच के करना है। टोटल टाइम T, T by Tx times ये क्या कितना लगाना है? क्वेश्चन मार्क। सोच के कर। नाउ 2 into T10 कितना होगा? 2 into T10, 2 into 2 T50 कितना होगा? T50 plus T50, 50 plus 50 75। देखो 100 10% खर्च हो गया T10, T10 के बाद कितना रहेगा? 10% खर्च हो गया 90, दोबारा T10 मीन्स 10%, 9 खर्च हो गया 81 रहेगा। ये टाइम को क्या बोलते हैं? 181 होने का टाइम को T19, इसका नाम क्या है? टाइम टेकन फॉर 19%। Therefore T2 into T10 is equal to T19। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? 2 into T20 is equal to 20, 80, 20 plus 16, T36, T20 plus T20 is equal to T50 plus T50 is equal to T50 means 50% plus 50% of the remaining, always remaining। सोचो T50 plus T50 T75। यहाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। T
Next. Almost over. Radioactive, artificial radioactivity. Artificial radioactivity. X alpha, beta, y. What is the equation? X plus alpha gives y plus beta. X को क्या बोलते हैं? टारगेट न्यूक्लाइड. जिसको मार रहे हो वो टारगेट न्यूक्लाइड. अल्फा को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल. मतलब मैंने अल्फा लेके, इनफैक्ट ए बी लिखना बेटर है. ए बी इंस्टेड ऑफ अल्फा बीटा. ए बी बेटर. एक्स ए बी वाई न्यूक्लियर रिएक्शन. प्रोजेक्टाइल. वाई को क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लाइड. पेरेंट न्यूक्लाइड, डॉटर न्यूक्लाइड. बी को क्या बोलते हैं? एजेक्टेड पार्टिकल. एजेक्टेड पार्टिकल. कमान. यूरेनियम 92-238 is bombarded with alpha. थोरियम 90-234 आया. प्लस क्या आएगा उसके साथ साथ? 92 प्लस अल्फा 24. 94 है ना, यहाँ 4 आएगा. 242. 48 कौन है? बेरिलियम. तो दिस इज द प्रोजेक्टाइल, दिस इज द एजेक्टेड पार्टिकल. अल्फा से मारा तो बेरिलियम आया. व्हाट नेक्स्ट? इस चैप्टर में और क्या है? प्रीवियस आईआईटी का क्वेश्चन करेंगे. सुनो, प्लीज राइट दिस प्रॉब्लम. हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238. हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 is say 100 years. Because 100 years. 4 mole. 4 mole uranium 238. How long you will get? 3 mole lead. 3 mole lead. यूरेनियम से लेड आता है. 4 में से 3 लेड बन गया. मतलब 75%. 75% मीन्स 2 हाफ लाइफ 200 ईयर्स में. यूरेनियम एंड लेड 1:3 रेशियो में है. यूरेनियम एंड लेड आर इन 1:3 रेशियो. मतलब शुरू में 4 का 4 यूरेनियम था. अभी 4 में से 3 चला गया, 1 ही रह गया. 4 2 बन गया, 2 1 बन गया. 2 हाफ लाइफ. नेक्स्ट. रेडियो एक्टिव डेके सीरीज एक्सक्लूडेड. व्हाट इज द डेके सीरीज? डेके सीरीज क्या है? रेलवे टाइम टेबल. देखो, इगातपुरी टू मनमाड़ कैसे जाना है? गाड़ी कितने बजे है? कहाँ मिलेगा तुमको? है मुंबई भुसावल लाइन में मिलेगा. मुंबई भुसावल का लाइन देखा तो रेड ऑन 86-222 क्या एमिट करेगा? 4 चार्ट्स है. 4 चार्ट्स. रेडियो एक्टिव डेके में 4 सीरीज है. ये कौन सा सीरीज में मिलेगा? 4n+2. 4n मल्टीपल्स ऑफ 4+2 220+2. सो
Let us see what they are. 4n series. This is called actinium series. 4n means, 4n means multiples of 4. Actinium series. इसका फ्रंट रनर कौन है? एक्टिनियम. यूरेनियम 236 समझो. यूरेनियम 92, 236. लास्ट में क्या आएगा? लेड 82. बोलो. 4n multiples. No, sorry. This is 4n plus 3 series. 4n plus 3 series called actinium. यूरेनियम 92, 238. लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला लास्ट क्या होगा? लेड होगा ना. लेड 82, 4n plus 3, 207. कितने अल्फा कितना बीटा इमिट करके? कितना अल्फा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई 4. 238, 207 हो गया. अरे गलत हो गया समथिंग. डिफरेंस कितना? 30, 31 कैसे होगा पागल? 218 अनस्टेबल है यार. 4n plus 3, 204 plus 3 है ना. अरे क्या बन गया? 4n plus 3 सीरीज. अरे ये 238 गलत है. 235, 238, 235 plus 3 है ना. प्लस 3 निकाला तो मल्टीपल्स ऑफ 4 plus 3. सो उस सीरीज में, रेडियोएक्टिव डेके सीरीज में, यू विल ऑलवेज सी a mass number difference of 4. Why? When alpha emits, it decreases by 4. बीटा में मास नंबर में फर्क आएगा ही नहीं. Who brings change in mass number? Only alpha. Who brings change in the mass number? Only alpha. सिर्फ अल्फा की वजह से मास नंबर में फर्क आएगा. सो कितने अल्फा? 235, 207, 28, 7 अल्फा. अगर ये 7 अल्फा है तो ये क्या होना था? 92, 14 घटना था. मतलब 78 होना है. 78 होना है, लेकिन 82 हुआ. मतलब 4 बीटा. 7 अल्फा, 4 बीटा. नंबर ऑफ बीटा के लिए एक रूल बनाओ. नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज इक्वल टू डेल्टा Z. 92, 82, 10. डेल्टा Z माइनस डेल्टा Z माइनस नंबर ऑफ बीटा है ना. नंबर ऑफ अल्फा 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा, 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस डेल्टा Z. व्हाट इज दैट? 7 अल्फा गया तो 14 का फर्क आना है. 10 का ही फर्क है. इनके हिसाब से 14 आना है, लेकिन यहां देखा तो 10 ही आया. नाउ एक्टिनियम सीरीज. नेक्स्ट वन 4n plus 2 सीरीज. यूरेनियम सीरीज. यूरेनियम 92, 230, 4n plus 2, 238. लास्ट लेड 82, 206. 206 के बाद लेड अनस्टेबल है. 82, 206 तक स्टेबल है. 207, 208 सब में अनस्टेबल है. 4n plus 1 सीरीज. नेप्ट्यूनियम सीरीज. नेप्ट्यून 4n plus 1 नेप्ट्यूनियम सीरीज. इसका फ्रंट रनर है. दिस इज नेप्ट्यूनियम 91, 241.
एंड लास्ट वाला बिस्मथ 83 4n + 1 209. Bismuth 83 209. This is the only artificial radioactive series. बाकी सब natural है. So what is the last element in all the natural radioactive series? Lead. What is the last element, final product of all natural radioactive? This is the only artificial series. Now 4n series, which is called thorium series, thorium 90-232, lead 82 208. 208 के बाद lead unstable हो जाएगा, and AUNT, aunt, actinium, uranium, neptunium, thorium, 4n + 3 210. So radon 222 कौन सा रूट में होगा, कौन सा चार्ट में? 222 4n + 2, 4n + 2. So radon 222 क्या एमिट करेगा, कहाँ दिखेगा? 4n + 2 सीरीज में दिखेगा. यूरेनियम 235 4n + 3 सीरीज, एक्टिनियम सीरीज. द मेंबर ऑफ दी हो गया. व्हाट नेक्स्ट? किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो दे दो. नहीं, वो वाला हैंड बुक. सुराना चला गया हैं? 35 ईयर्स दे दो. 37. लेटेस्ट वाला दे दो, लेटेस्ट वाला दे दो. ये बहुत पुराना है. कोई 37 ईयर्स दो. 39. 1979 का पेपर बेकार है यार. 39. स्टेट्स ऑफ मीटर. ओके. कहा है सरफेस एंड न्यूक्लियर दोनों एक ही साथ में दिया ना मेरे को. हाँ, न्यूक्लियर. या कैन यू गिव मी माई ग्लासेस? सीरीज नहीं है. पूरा सीरीज पहले हम रटवाते थे कैसे, टेलीफोन नंबर जैसा. 1 2 5 मीन्स 1 अल्फा 2 बीटा 5 अल्फा, ऐसा रटते थे. फिजन फ्यूजन. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी? Curie 3.7 × 10^10 disintegrations per second. Rutherford 10^6 disintegrations per second. One Rutherford means. Becquerel भी है. I think Becquerel is 1 disintegration per second. Alpha, beta, gamma. Penetrating power alpha less than beta less than gamma. Isotones, isodiaphers, radioactivity. PV 206 तक जाएगा. 208 तक स्टेबल है. 208 के आगे अनस्टेबल. कार्बन डेटिंग. अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलोन सेपरेटली दिया. अच्छा, ये फिर ये किधर है?
वो पैराग्राफ है ना, वो पैराग्राफ कहाँ गायब कर दिया मेरे को। ये जाके इधर दिया काइनेटिक्स में। Carbon 14 is used to determine the age of organic material. The procedure is based on the formation of C14 by neutron capture. Yes, a positron is Aluminium 1327 bombarded with alpha, silicon 1430 plus X। X क्या है देखो भाई, अल्फा मीन्स 24 15 14 1 31 1। So X11 is proton, X11 is proton. Aluminum is bombarded with alpha to give phosphorus 1530 plus Y. What is Y? My God. 13 2 15 0 27 4 31 1 0 1 is a neutron. This is a neutron, this is a proton. Next, the same phosphorus is bombarded with alpha, silicon 1430 plus Z। देख लो 15 और 2 ना, अरे 15 और 2 17 16 बन गया। 3 डिफरेंस कहाँ आएगा? 3। माय गॉड, कुछ गलत है। एरो मार्क ऐसा होगा मेरे ख्याल से। एरो मार्क ऐसा होना है क्या? 16 15 बन गया 1 34 30, फिर भी 1 4 कौन है? 1 4 भी ज्यादा है। समथिंग रॉन्ग। लीव इट। पॉजिट्रॉन इज 1123। पॉजिट्रॉन एमिट हो गया E+1 0। देन द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का रेशियो मांग रहे। देखो पॉजिट्रॉन आ गया तो 11 है 1 है 10 बनेगा, 23 रहेगा। सो 23/10 एटॉमिक मास बाई 23/10। एल्यूमिनियम 1328 क्या एमिट करेगा? एल्यूमिनियम 1328 क्या एमिट करेगा? पता नहीं, वी कैनॉट से। एमिट करने की जरूरत नहीं। सो क्वेश्चन में उनको देना है फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 1327 इज स्टेबल। एल्यूमिनियम 1327 इज स्टेबल। फॉर एल्यूमिनियम दिस इज द स्टेबल। सो 1329 क्या एमिट करेगा? 1329 क्या एमिट करेगा? ज्यादा न्यूट्रॉन और कम प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम है तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बना के इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकना है बीटा माइनस डेके।
हर एक क्वेश्चन में वो है। Na23 is more stable. For Na23 is more stable. Find out the process. 24 सोडियम 24 क्या करेगा? 2411 न्यूट्रॉन ज्यादा, बीटा माइनस देके। What about 2014? 2014 का क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे। Xenon 54 139 हाँ। स्ट्रॉन्शियम 38 94। अच्छा, ये सब यूरेनियम से आए हैं। 92 238 यूरेनियम 92 235 gave 54 and strontium 38 94। एक न्यूट्रॉन से मैंने मारा, कितने न्यूट्रॉन आ गए? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 235 प्लस 1, एक न्यूट्रॉन मैंने लिया ना, 236। 139 प्लस 94 139, बोलो 139 94 233 therefore 3 न्यूट्रॉन्स। आई नहीं बाबा, 235 है ना, यहाँ 133 2 न्यूट्रॉन्स। हाँ 2013 ये था। बेरिलियम 49 प्लस एक्स, बेरिलियम 48 plus y. What can be x and y? More than one correct question. x and y क्या हो सकता है? गामा न्यूट्रॉन, गामा will not change anything. गामा से मारा तो, और 9 8 plus 1 चलेगा ना, 0 1 न्यूट्रॉन 0 1. So this is okay. Gamma will not bring any change. So 9 is equal to 9, 4 is equal to 4. Balance. No, gamma neutron is okay. Next. Can they be proton deuteron? Proton deuteron 1 1 1 2. 9 plus 1 8 plus 2 4 plus 1 4 plus 1. तो होगा proton deuteron होगा. Neutron deuteron, neutron 0 1, deuteron 1 2. सो इसको इंक्रीज करने वाला, एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करने वाला नहीं है उधर. कैमरा बंद कर.